good morning students. This video is for the students of class 6 and today we are going to do the first chapter of your English textbook. The name of the chapter is the Kabuliwala and it comes from the section name Bonds of Love. In the section Bonds of Love you will get the first chapter. The name of the chapter is Kabuliwala. Okay, and this chapter was written by India's finest, India's greatest poets who has ever lived on this planet, and we are very thankful to the Almighty God that such an epic poet was born in India, and the name of that poet was Guru Rabindranath Tagore. Is it coming? Okay. It was written by Guru Rabindranath Tagore. So, the chapter is the Kabuliwala. In this particular chapter, we are going to learn what exactly the meaning of the word Kabuliwala is, who is Kabuliwala, what kind of role he plays in this particular chapter, and what kind of relation he shares with the central characters of the rest of the central characters of the story. So let's get the ball rolling. There are three central characters in this particular story. The first character is Minnie. Yes, Minnie. Minnie is a 5-year-old girl. 5-year-old girl. Minnie is a 5-year-old girl. The second central character of this story is Minnie's father, who is the narrator of the entire story. Minnie's father is the narrator of the entire story. Minnie के पापा ये पूरे के पूरे स्टोरी को हमें सुनाते हैं, बताते हैं. And ये फर्स्ट पर्सन में ये डिस्क्राइब किया गया है आई से, ठीक है ना, यानी कि जो नरेटर है वो खुद जो कहानी सुना रहा है, मिनीज फादर, वो खुद इस कहानी में इन्वॉल्व, तो फर्स्ट पर्सन से इसको एक्सप्लेन किया गया है. तो मैं जब भी आपको इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के दौरान आई बोलूं मैं, तो आप इमेजिन करना कि आई एम मिनीज फादर, ताकि आपको समझने में आसानी हो. इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ यू कंसीडर मी मिनीज फादर. तो जब कभी भी मैं आई बोलूंगा तो आप समझ लेना मैं मिनी के फादर की बात कर रहा हूं. एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज रहमान. Who is Rahman? Rahman is a Kabuliwala. Why he is a Kabuliwala? Because this person Rahman has come from Kabul. You know where Kabul is? Kabul is the capital of Afghanistan. So actually this person Rahman, who is popularly known as Kabuliwala in the street, among the people, among the boys and girls, is popularly known as Kabuliwala, but his actual name is Rahman, and he has come from Kabul, which is the capital of Afghanistan. Now, before describing this particular chapter, I would like to give you the glimpse of some of the characteristics, some of the specialities of all these three characters. Minnie, who is a 5-year-old girl, Minnie is a chatterbox. You know who is called chatterbox? A chatterbox is a person, a boy or a girl or a woman, anyone can be a chatterbox. A chatterbox is a person who speaks a lot, who speaks unnecessary things. मन भी नहीं करे सुनने को, फिर भी वो इंसान बोले जा रहा है और अननेसेसरी बातों को ज्यादा बोलता है, उसे चैटरबॉक्स कहते हैं. जो बकबक बहुत करे ना, तो मिनी एक 5 साल की लड़की है और वो बहुत बोलती है, अननेसेसरी बोलती है, और मैक्सिमम उसकी बातें जो होती है उसका कोई सर पाँव नहीं होता है, उसकी कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं होती है. मिनी के जो फादर है नरेटर, जिसको मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है, ये एक राइटर है, ये एक नोवेल लिखते हैं, नोवेल राइटर है ये, ठीक है. और थर्ड जो कैरेक्टर है रहमान, जो काबुल से आया है, जिसे पॉपुलरली लोग काबुलीवाला कहते हैं,
ये एक पेडलर है, एक पेडलर है। पेडलर वो होता है जो एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम करके अपने सामानों को बेचता है। जैसे हमारे यहाँ हॉकर होते हैं, एक गली से दूसरे गली, एक घर से दूसरे घर घूम घूम के अपने सामान को बेचे, उससे पेडलर कहते हैं। नाउ ऑल these three characters are interconnected। ये तीनों की तीनों कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड। जब हम ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों कैरेक्टर इंटरकनेक्टेड कैसे है। बट इसमें सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड दो इंसान हैं वो है रहमान और मिनी। रहमान और मिनी का एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता सा बन जाता है। दो स्ट्रेंजर, रहमान एक्चुअली आया है काबुल से मिनी की दुनिया में, परहैप्स ये अमेरिका की सेटअप है, अमेरिका में आया है और ये सामान बेच रहा है। और एक स्ट्रेंजर एक 5 साल की लड़की से अपने बॉन्ड कैसे बनाता है, अपने रिश्ता कैसे बनाता है और उसे वो भूल नहीं पाता अपने बुरे दिनों में भी। ये बेसिकली हम इस पूरे स्टोरी में पढ़ने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स रीड द एंटायर चैप्टर। आई एम गोइंग टू रिसाइट द एंटायर चैप्टर लाइन बाय लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग टू यू। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप कोशिश करें कि आपकी जो टेक्स्ट बुक हो वो अपने सामने आप खोल के रखें, ताकि जब मैं आप ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उस वक्त वर्ड्स भी आपको समझ में आती चले और सेंटेंस की मीनिंग भी आपको समझ में आती चले। ओके, सो लेट्स गेट द बॉल रॉलिंग। माय 5-year-old डॉटर मिनी कैनॉट लिव विदाउट चैटरिंग। ये माई जो है आई से बना है और मैंने आपको बताया आई कौन है, मिनी के फादर है, जो कि ये पूरी की पूरी कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं मिनी के फादर कि मेरी जो 5 साल की बेटी है मिनी, वो विदाउट चैटरिंग रह नहीं सकती। शी cannot live a single moment of her life without speaking. Every time I find her speaking to someone over some unnecessary stuffs. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. वो कहते हैं कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी मिनट बगैर बोले नहीं गंवाया होगा। Her mother would often tell her to stop her prattle. उसकी माँ उसे कहती थी ये प्रैटल करना बंद करो। प्रैटल मतलब चैटरिंग करना बंद करो, अननेसेसरी बोलना बंद करो। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं मना नहीं करता था। सो पहला जो 3-4 लाइन से उससे पता चलता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मिनी और वो एक चैटर बॉक्स होती है, वो हमेशा बोलती रहती है, अननेसेसरी बातों को भी एक्सप्लेन करती रहती है, क्वेश्चंस पूछा करती है। मिनी की माँ इससे इस हैबिट से परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि प्रैटलिंग बंद करो, बोलना बंद करो। लेकिन मिनी इस बात को बिल्कुल नहीं सुनती है और फादर भी उसके सपोर्ट करते हैं उसमें। वन मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन माई न्यू नॉवेल। मैंने आपको बताया ये एक नॉवेलिस्ट, एक राइटर है मिनी के फादर। तो कह रहे हैं कि एक सुबह मैं अपने नोवेल पे काम कर रहा था, मैं नोवेल लिख रहा था। मिनी स्टोर इनटू माय रूम। मिनी चुपके से मेरे कमरे में आती है, पुट हर हैंड ऑन माइन, मेरे हाथों के ऊपर अपना हाथ रखती है, एंड सेड, फादर, रामदयाल द गेटकीपर कॉल्स अ क्रो अ करो। मिनी कहती है कि रामदयाल जो गेटकीपर है वो क्रो को करो बोल रहा है। ऐसा क्यों? He doesn't know anything, does he? उसे कुछ भी नहीं पता है ना, मतलब रामदयाल को कुछ भी नहीं पता है, वो क्रो को करो प्रोनाउंस कर रहा है। Before I could explain this to her, इससे पहले कि मैं उसे एक्सप्लेन कर पाता कि रामदयाल क्रो को करो क्यों बोल रहा है या फिर तुम गलत सुन रही हो, she jumped to another subject. वो एक दूसरे टॉपिक पे आ जाती है मिनी। Father, she said, Bola says, there is an elephant in the clouds. It blows water out of its trunk and that is why it rains. फिर मिनी दूसरे सब्जेक्ट पे आती है और इस बार बोला नाम के आदमी को मेंशन करती है अपने कॉन्वर्सेशन में पापा के साथ और कहती है कि पापा, बोला कह रहा था कि क्लाउड में एक एलिफेंट है और वो एलिफेंट ट्रंक से पानी फेंकता है धरती पे, जिसकी वजह से रेन होती है। सो आप देख सकते हैं कि ये दो बातें जो मिनी ने कही है, क्रो को करो और ट्रंक से रेन होने की जो बात कह रही है, आप समझ सकते हो कितना नॉनसेंस बातें करती है। उसके बातों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई मीनिंग नहीं, एक मीनिंगफुल बातें नहीं करती है।
इसीलिए इसकी माँ इसे प्रैक्टिकली करने को मना करती है। While I sat thinking of some reply, she put another question. इससे पहले कि मैं कुछ रिप्लाई दे पाता, वो एक और क्वेश्चन मुझसे पूछती है, Father, what relation is mother to you? माँ के साथ आपका क्या रिलेशन है? But then she heard something down in the street. तभी अचानक से मिनी को कुछ स्ट्रीट में नीचे सुनाई देता। At once she ran to the window crying. वह विंडो तक जोर जोर से आवाज करते हुए जाती है, अकाबली वाला, अकाबली वाला। Sure enough, in the street below was a Kabuli wala passing slowly along. He wore the loose clothing of his people with a big turban. There was a bag on his back, and in his hand he carried boxes of clips. तो देखती है मिनी कि स्ट्रीट में एक काबली वाला है, कुछ छीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथों में ग्रेप्स के बॉक्स है और उसने एक टर्बन भी पहना हुआ है, पगड़ी भी पहनी हुई है। The काबली वाला turned, काबली वाला पीछे मुड़ के देखता है and looked up at the child, और मिनी की तरफ देखता है। Overcome by terror, Minnie fled to her mother for protection. काबली वाले को देख के, जब काबली वाले ने मिनी की तरफ देखा, she became terrified, वो डर जाती है। And owing to terror, terror की वजह से, डर की वजह से मिनी काबली वालों को देखने के बाद जब वो डर जाती है, मिनी चली जाती है अपने मम्मी के पास प्रोटेक्शन के लिए। She had a blind belief that inside the big man's bag there were 2 or 3 other children like herself. मिनी को ऐसा विश्वास था, मिनी को ऐसा लगता था कि काबली वाले के बैग के अंदर मिनी जैसे जैसे ये 2-3 और बच्चे बच्चियां बैठी हुई है। उसे ऐसा लगता था कि ये शायद काबली वाला कहीं किडनैपर तो नहीं है, ये बच्चे किडनैप तो नहीं करता है। But meanwhile the peddler came in and greeted me with a smile. इसी दौरान वो पेडलर जो है वो आता है मेरे पास, मैं यानी कि मिनी का फादर मेरे पास आता है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आप आई को इमेजिन कीजिए कि मैं मिनी का फादर हूँ, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो मेरे पास आता है वो पेडलर यानी कि वो हॉकर, वो काबली वाला मेरे पास आता है और खुशी से ग्रीट करता है मुझे, और वो हंसता है मुझे देख करके, एक स्माइल से मुझे ग्रीट करता है। आई मेड सम स्मॉल परचेजेस, मैंने कुछ सामान खरीदा उस काबली वाले से। Then I had a little conversation with him about his country. तो मैंने उससे, उस काबली वाले से उसके कंट्री के बारे में पूछा, Where have you come from? Which country do you belong to? As he was about to leave, he asked, Where is the little girl, sir? अचानक से काबली वाला पूछता है, सर वो छोटी सी बच्ची कहाँ है जो उस विंडो से मुझे देख रही थी। Thinking that Minnie must get rid of her false fear, I had her brought out. मैंने सोचा कि मिनी को इस झूठे फियर से, फॉल्स फियर से, झूठे भ्रम वाले फियर से उसको बाहर निकाला जाए। मिनी को एक्चुअली ये फियर थी कि काबली वाला के बैग के अंदर कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे किडनैप करता है। तो मैंने सोचा, यानी कि मिनी के फादर ने सोचा कि उसे इस भ्रम से, इस डर से बाहर निकाला जाए और उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए मिनी से, ताकि मिनी का डर खत्म हो, थोड़ा दूर हो डर। तो मैंने क्या किया, मिनी को बुलाया अपने पास। She stood by my chair, वो मेरे चेयर के बगल में खड़ी हो गई। Looking at the काबली वाला and his bag, इसके बैग और काबली वाला को गौर से वो देखने लगी। He offered her nuts and raisins, but she was not tempted. उसने कुछ नट और कुछ रेजिन्स, उसे किशमिश और बादाम कुछ उसे दिए खाने को, लेकिन इससे वो टेम्पटेड नहीं हुई। टेम्पटेड मीन्स लुभान्वित नहीं हुई। लुभान्वित मीन्स उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई, लालची नहीं बनी उसे देख करके। She clung close to me, वो मुझसे और नजदीक आकर के मेरे पास, उससे और ज्यादा वो जुड़ गई, उससे और मेरे नजदीक आ गई, उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। This was the first meeting. ये उस काबली वाला और मिनी की पहली मीटिंग थी, फेस टू फेस मीटिंग। One morning, not many days later, I had to go somewhere. As I was leaving the house, I was startled to find Minnie laughing and talking with great काबली वाला। एक सुबह जब मुझे कहीं जाना था तो मैं ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि काबली वाला और मिनी दोनों एक साथ बैठ करके आमने सामने बातें कर रहे हैं
और हंस करके बातें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक तो काबली वाला से मिनी डरती थी बहुत, नाउ इट्स समथिंग सरप्राइजिंग, इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू सी मिनी टॉकिंग टू काबली वाला, इवन लाफिंगली, हंस करके उससे बातें करना, जो बहुत स्टार्टलिंग था। स्टार्टलिंग मतलब आश्चर्यजनक था। She was seated on a bench and the काबलीवाला was seated at her feet. वो एक बेंच पे बैठी हुई थी मिनी, और काबलीवाला उसके फीट पे बैठा हुआ था, जमीन पे बैठा हुआ था। मिनी had never found so patient a listener all her life. पूरे जिंदगी मिनी ने किसी को भी इतनी पेशेंस से नहीं सुना था। एक्चुअली मिनी एक चैटर बॉक्स है, उससे तो लोगों को सुनाने की आदत है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि मिनी किसी की बात बहुत पेशेंटली सुन रही है, उसके बातों में इंटरेस्ट दिखा रही है, वो नहीं बोल रही है। The corner of her life, the corner of her little sari was already stuffed with almonds and raisins. जो उसके साड़ी का कॉर्नर पार्ट था, उसमें ऑलरेडी almonds and raisins डाल दिए थे, काबली वाले ने बांध दिए थे। Why did you give her those? I said, मैंने पूछा कि तुमने ये almonds and raisins क्यों दिए? काबली वाला से मैंने पूछा कि तुमने मेरी बेटी को almonds and raisins क्यों दिए? I took out a coin and handed it to him. मैंने एक सिक्का निकाला अपनी जेब से और उस काबली वाले को उस raisins और nuts के बदले, almonds के बदले दे दिए। On my return an hour later, I found that the coin had created a lot of trouble. जब 1 घंटे के बाद मैं बाहर से घर आया, तो मैंने देखा कि उस एक सिक्के की वजह से मेरे घर पे बहुत सारी परेशानियां हो गई थी। क्या परेशानियां हुई थी? वही सिक्का जो मैंने काबली वाले को दिया था। मैंने सिक्का दिया काबली वाले को, बट परेशानी मेरे घर में हुई। क्या हुई देखते हैं। The काबली वाला had given it to Minnie. काबली वाले ने वो सिक्का मिनी को वापस दे दिया था। And her mother was shouting, और इसकी माँ शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी, Where did you get this coin? ये कॉइन तुमको कहाँ से मिला? ये सिक्का कहाँ से मिला? The काबली वाला gave it to me, said Minnie cheerfully. The काबली वाला gave it to you? cried her mother, much shocked. Luckily for Minnie, had entered just then and saved her from thrashing. माँ उसकी बहुत गुस्सा हो जाती है। She was extremely raised, angry, कि ये तुमने काबली वाले से पैसे क्यों लिए? अचानक से लकीली मैं इंटरफेयर करता हूँ, यानी कि मिनी के फादर इंटरफेयर करते हैं और उसे बचा लेते हैं, उस मिनी को मार खाने से बचा लेते हैं। Later, I came to know that it was not the first or second time the two had met. बाद में मुझे पता चलता है ये पहली बार नहीं था कि ये दोनों मिले हैं। इससे पहले भी कई बार ये बच्चे, ये मेरी बेटी और रहमान मिलते आते रहे। The काबली वाला had overcome the child's fear by bribery of nuts and almonds. मिनी के मन में एक डर था काबली वाले के प्रति। She was fearful of काबली वाला। तो काबली वाले ने एक टैक्टिक्स लगाई, और उस टैक्टिक में ये था कि वो उसे आलमंड्स और नट्स और रेजिन्स दिया करता था ब्राइबरी के तौर पे, ताकि मिनी को ये फील हो कि ये काबली वाला अच्छा इंसान है, हेल्पफुल नेचर का है, काइंड नेचर का है, लवेबल नेचर का है, फ्रेंडली नेचर का है, और ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और काबली वाला रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट ही वांटेड टू बी द फ्रेंड ऑफ मिनी, इसलिए वो ब्राइबरी में उसे नट्स और आलमंड्स दिया करता था। The two had become great friends and had many common jokes. दोनों के बीच में खूब मजाक वाली बातें हुआ करती थी, और दोनों गहरे मित्र बन गए थे, great friends हो गए थे। For example, Minnie would say, "Oh काबली वाला, what have you got in your bag?" और मिनी कभी-कभी पूछती थी कि तुम्हारे बैग में क्या है? And he would reply, "An elephant." और काबली वाला रिप्लाई करता था, मेरे बैग में एलिफेंट, एक हाथी। ये फनी कॉन्वर्सेशन होता था, हंसने हंसाने के लिए होता था। बैग में तो एलिफेंट आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है, तो ये हंसने हंसाने के लिए काबली वाला बात करता था मिनी से। Not much cause for merriment perhaps, but how both of them enjoyed the joke. ये बहुत ज़्यादा हंसने हंसाने वाली बात नहीं थी कि बैग में एक एलिफेंट है, लेकिन मिनी के लिए इतना काफ़ी था कि उसे हंसाया जा सके, और दोनों खूब जोक करते थे एक दूसरे पे हर वक्त। Then the काबली वाला would take his turn and said,
Well, little one, when are you going to the father-in-law's house? तो अचानक से मिनी वाला काबली वाला पूछता है मिनी से, क्या लिटिल वन मुझे बताओ, एक छोटी सी बच्ची मुझे बताओ कि तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो? फादर इन लॉ मीन्स ससुराल कब जा रही हो, तुम्हारी शादी कब होगी? मिनी वॉज येट ओनली अ लिटिल चाइल्ड, मिनी अभी भी एक छोटी बच्ची ही थी। शी हैड नो आइडिया व्हाट अ फादर इन लॉ इज, उसे कुछ भी नहीं पता था कि ये फादर इन लॉ होता क्या है, उसने ये वर्ड सुना भी नहीं था अपनी जिंदगी में। बट शी वुड नॉट शो हर इग्नोरेंस, लेकिन वो अपनी इग्नोरेंस नहीं दिखाना चाहती थी काबली वाला के सामने। वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि मुझे फादर इन लॉ का मतलब नहीं पता है, तो प्रिटेंड करती है, बहाना करती है कि नहीं मुझे इसका मीनिंग पता है और मैं इसका आपको जवाब देती हूँ, और जवाब देती भी है। With very tact, she would say, "Are you going there? क्या अभी वहाँ चलिएगा मेरे साथ, मेरे फादर इन लॉ में?" Among men of Kabliwala's class, the words father-in-law's house have a double meaning. ये काबली वाले की दुनिया में फादर इन लॉ के दो मीनिंग होते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही मीनिंग होते हैं ससुराल, काबली वाले की दुनिया में फादर इन लॉ के दो मीनिंग होते हैं। दूसरा मीनिंग क्या होता है? फादर इन लॉ का मतलब होता है जेल, प्रिजन, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, जहाँ पे दोषियों को, कॉन्विक्ट्स को रखा जाता है। They are another name for jail, a place where we are well cared for at no expense to ourselves. एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें खुद कुछ खर्च नहीं करना है, हमारा खुद केयर किया जाएगा, हमें खाना भी दिया जाएगा, हमें रहने को जगह भी दी जाएगी और मुझे पैसे भी दिए जाएंगे। The काबली वाला would check Mini's question in this sense. काबली वाले ने मिनी के क्वेश्चन को इस तरीके से ले लिया। ओह अच्छा, आप जेल की बात कर रहे हैं? He would shake his fist in the invisible policeman and say, "I'll trash my father-in-law." At this, Minnie would go into peals of laughter, in which her friend also joined. अचानक से मिनी ने एक्चुअली इस फादर-इन-लॉ टर्म को जेल समझ लिया था। तो काबली वाला कहता है कि वो देखो एक इनविजिबल पुलिसमैन है, और उस इनविजिबल मतलब अदृश्य पुलिसमैन है, उसको मैं कभी मारूंगा तो वो मुझे जेल में डालेगा, तो मैं फादर-इन-लॉ जाऊंगा, फादर-इन-लॉ घर पे जाऊंगा। इससे मेरी हंसने लगती है, इस बात को सुन के मिनी काफी हंसने लगती है। मिनी's mother was full of doubts about काबली वाला। मिनी के फादर बहुत फ्रेंडली नेचर के थे काबली वाले के साथ, मिनी तो खैर फ्रेंडली हो गई थी, लेकिन मिनी की जो माँ है वो बहुत डाउटफुल थी काबली वाले को लेकर के, उसे बहुत शक था, यह काबली वाला सही इंसान नहीं लगता है मुझे। Often she would beg me to keep an eye on the tall big man। अक्सर वो मुझे कहा करती थी, यानी कि मिनी की माँ मिनी के फादर को कहा करती थी कि नजर रखिए उस काबली वाले पे, वो मुझे अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता है। I would try to laugh or fear away। मैं उसकी हंसी को मैं उसके इस फियर को हंसी में कन्वर्ट कर देता था। But then she would say seriously, "Well, children never kidnap." मैं चाहता था कि उसके इस डर को हंसी में कन्वर्ट करूं, लेकिन अचानक से वो मुझे कह देते, क्या हमारे समाज में बच्चे किडनैप नहीं होते हैं? ऐसे ही तो हॉकर्स, ऐसे ही पेडलर्स तो आते हैं और बच्चे किडनैप करके ले जाते हैं। हमारी भी एक बेटी है, उससे मिलती जुलती है, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। In spite of all my explanations and assurances, her fears persisted। मेरे तमाम समझाने के बावजूद, अश्योरेंस देने के बावजूद, मेरे तमाम एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी मिनी की माँ की जो डर थी वो परसिस्ट कर रही थी, यानी कि बनी हुई थी, उसकी डर थी, मन में उसके डर था उस पेडलर को लेके। But I didn't think it right to forbid the man from coming to our house and the intimacy were unchecked। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई स्ट्रेंजर जो हमारी बेटी से इतना घुल मिल गया है, इतना लवेबल है, फ्रेंडली नेचर का हो गया है, वो उसको मैं मना करूँ, फॉरबिड करूँ अपने घर पे आने से, ये बिल्कुल मैं चाहता नहीं था। Once a year, in the middle of January, Rahman the Kabliwala would return to his country, to this country। साल में एक बार जनवरी के मिड महीने में रहमान हमारे कंट्री में आया करता था। Then he would be very busy, going from house to house, collecting his debts। उसके बाद वो बहुत एक्सट्रीमली बिजी हो जाया करता था और घर घर जाकर के अपने डेब्ट्स, अपने जो लोन पे उसने सामान दिए होते हैं, जो उसने डेब्ट पे, कर्ज पे सामान दिया होता है लोगों को, वो अपना डेब्ट वसूलने, कर्ज वसूलने चला जाता था।
This year, however, he always found time to come and see me. इस साल उसने समय निकाला और इस साल भी उसने समय निकाला और वो आकर के मिनी से मिला करता था. If he could not come in the morning, he would appear in the evening. अगर वह सुबह में नहीं आ पाता, वो शाम में आता मिनी से मिलने के लिए. वो आता जरूर मिलने के लिए मिनी से. मिनी के साथ उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था, बॉन्ड बन गया था. One morning, I was reading a book in my study. एक सुबह की बात है, मैं अपने स्टडी में, स्टडी मीन्स वो रूम जो स्टडी रूम होता है हमारा, उसे स्टडी भी कहते हैं. स्टडी रूम में मैं एक किताब पढ़ रहा था. It was about 8 o'clock and the weather was chilly. 8 बजे का समय था और जो वेदर था, जो मौसम था, बिल्कुल ही ठंडी थी. All at once, I heard an uproar in the street. अचानक से मुझे गली में कुछ आवाज सुनाई देती है, जोर से हल्ले गुल्ले की आवाज सुनाई देती है. When I looked out, जब मैंने बाहर देखा, I saw रहमान being led away by 2 policemen. जब मैंने बाहर देखा, तो मैंने देखा कि रहमान को 2 पुलिसमैन वाले अपने साथ ले जा रहे हैं. Behind them was a crowd of curious boys. There were bloodstains on the clothes of काबुलीवाला, and one of the policemen carried a knife. मैंने देखा कि उस पुलिस और उन पुलिस वालों और काबुली वाले के पीछे बहुत सारे बच्चों का क्राउड जा रहा था. काबुली वाले के ब्लड के ऊपर बॉडी के ऊपर ब्लड स्टेन लगे हुए थे. एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड ए नाइफ, और एक पुलिसमैन के हाथ में एक चाकू भी थी. हरिंग आउट, आई स्टॉप्ड देम एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मींट. बाहर निकलने के बाद मैंने इंक्वायरी की कि आखिर हुआ क्या काबुली वाले के साथ. Partly from one, partly from another, I gathered that a certain neighbor had owed the peddler some money from Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it. थोड़ी मुझे ये उड़ती खबर मिली कि एक कोई पड़ोसी था, एक पड़ोसी जो इस मिनी के बाजू में रहता था. उसने एक रामपुरी शॉल खरीदी थी इससे काबुली वाले से. और अब जब काबुली वाला पेमेंट लेने के लिए आता है तो वो नेबर कहते हैं कि मैंने आपसे कोई शॉल नहीं खरीदी थी. उसने उसे पेमेंट देने से मना कर दी. इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्गुमेंट, रहमान हैड स्ट्रक द मैन विद हिज नाइफ. खूब जोर से आर्गुमेंट होती है रहमान और इस नेबर के बीच में जिसने शॉल लिया हुआ था. और इसी हीटेड आर्गुमेंट, जोर जबरदस्ती के आर्गुमेंट्स के बीच में, बहस के बीच में, रहमान ने चाकू निकाल करके प्रेस कर दिया उस नेबर की बॉडी में. He was now calling his enemy all sorts of names. Call name means abuse. Call name means abuse करना. वो अपने enemy को हर तरह के गालियों से बुला रहा था रहमान. Suddenly, in the veranda of my house appeared my little Minnie. अचानक से वरांडा में मेरी मिनी चली जाती है. As usual, she exclaimed, "Oh, काबुली वाला!" हमेशा की तरह फिर से वो चिल्लाती, exclaim करती है, "Oh, काबुली वाला!" Rahman's face lit up as he turned to her. रहमान का चेहरा लाल हो गया जब वो उसकी तरफ देखता है, मिनी की तरफ. He had no bag under his arm today. उसके हाथों के नीचे इस बार कोई बैग नहीं था, उसके आर्म में कोई बैग नहीं था. So she could not discuss the elephant with him. इसलिए वो मिनी आज उससे एलिफेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी, क्योंकि काबुली वाले ने मिनी को बताया था कि इस बैग में मैं एलिफेंट कैरी करता हूँ. तो आज कोई बैग है नहीं, पुलिस ले जा रही है उससे, तो एलिफेंट का कोई डिस्कशन होगा नहीं. She at once proceeded to the next question. अब वो दूसरे क्वेश्चन में चली जाती है और पूछती है, Are you going to the father-in-law's house? क्या आप ससुराल जा रहे हैं? रहमान laughed and said, रहमान हंस के कहता है, Just here I am going, little one. मैं वहीं जा रहा हूँ मेरी प्यारी बच्ची. Then seeing that the reply had not amused the child, she held up a chained hand and said. तो जब रहमान को ये फील होता है कि ये रिप्लाई सुन के कि हाँ मैं ससुराल जा रहा हूँ, ये रिप्लाई सुन के जब मिनी को अच्छा महसूस नहीं होता है, तो रहमान कहता है मिनी से कि I would have thrashed this old father-in-law, but my hands are bound. कहता है कि मैं ये जितने भी फादर-इन-लॉ ससुर यहाँ पे खड़े हैं, इन सारे फादर-इन-लॉस को मैं थ्रैश कर देता, पीटता जबरदस्त तरीके से, बट माय हैंड्स आर
chained, मेरे हाथ बंधे हुए हैं. रहमान was sentenced to some years imprisonment. कुछ सालों के लिए रहमान को कैद की सजा सुना दी गई. Time passed by, समय गुजरते गए, and he was not remembered. और लोग उसे भूलना भी स्टार्ट कर गए. Even our little money, I am ashamed to say, forgot her old friend. यहाँ तक कि मेरी बेटी मिनी भी भूल गई उस पेडलर को, उस काबली वाले को. New companions filled her life. नए नए दोस्तों ने काबली वाले की जगह ले ली थी. As she grew older, she spent more of her time with the girls of her age. जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो अपने उम्र के दोस्तों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करती गई. Years have passed. कई साल गुजर गए. It was the day of Minnie's marriage. आज मिनी की शादी थी. Since early dawn, the wedding pipes had been sounding. सुबह से ही wedding pipe, शहनाई वगैरह बज रही थी. I was sitting in my study, looking through the accounts. मैं अपने स्टडी रूम में था और पैसों के खर्च का, मैं शादी में जो पैसे खर्च होने वाले थे उसका मैं कैलकुलेशन कर रहा था. Suddenly someone entered. अचानक से कमरे में कोई एंटर करता है and saluted respectfully. और respectfully salute करता है. It was रहमान, the काबली वाला. At first I did not recognize him. पहले तो मैंने उसे पहचाना ही नहीं कि कौन है. But I knew him again when he smiled. लेकिन जैसे वो स्माइल करता है काबली वाला, वह मैं रहमान के फादर से मिनी के फादर से पहचान लेते. यानी कि अब मिनी बड़ी हो चुकी है, आज उसकी शादी है और कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से आज ही के दिन रहमान भी आता है. आज ही के दिन उसको रिलीज भी किया जाता है. आज ही के दिन नहीं, एक दिन पहले उसे रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन आज वो मिनी से मिलने के लिए आता है उस दिन जिस दिन मिनी की शादी होती है. और अनफॉर्चुनेटली मिनी उसे भूल चुकी होती है, मिनी उसे याद भी नहीं करती है क्योंकि मिनी अब बड़ी हो चुकी है, अपने दोस्तों के साथ रहती है. हाउ आर यू रहमान? आई सेड. व्हेन डिड यू कम? कैसे हो रहमान, तुम कब आए? आई वाज लेट आउट ऑफ प्रिजन यस्टरडे इवनिंग. कल की शाम मैं जेल से निकला हूँ. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. द वर्ड्स struck harsh on my ears. ये prison word सुन के, ये जेल word सुन के मुझे, मेरे कान को अच्छा नहीं लगा. I thought his coming was not a good omen. Omen means शगुन. मुझे ऐसा लगा कि उसका आना अच्छा शगुन नहीं है, शुभ लाभ नहीं है. Because it was the day of Minnie's marriage. क्योंकि आज मिनी के शादी का दिन था. There were ceremonies going on and I am busy. पार्टियाँ चल रही है, सेरेमनी चल रही है, उत्सव चल रहा है, लोग हैप्पी है और मैं बिजी हूँ. आई सेड, मैंने कहा कि अभी घर पे सेरेमनी चल रही है और मैं एक्सट्रीमली बिजी हूँ. कुड यू कम अनदर डे? किसी दूसरे दिन आ सकते हो क्या? एट वंस ही टर्न टू गो. वो तुरंत जाने के लिए वो वापस जाने के लिए मुड़ गया. बट एज ही रीच्ड द डोर, जैसे वह दरवाजे तक पहुँचता है, ही टर्न एंड सेड, मुड़ के कहता है, May I not see the little one, sir, for a moment? क्या मैं उस छोटी सी बच्ची से थोड़ी देर के लिए मिल नहीं सकता हूँ? अब देखो, मिनी तो हो गई बड़ी. It is her wedding day today. आज उसकी शादी है. बट उस काबली वाले के नज़र में मिनी अभी भी एक छोटी बच्ची ही है. क्यों? क्योंकि जिस नज़र से उसने उस बच्ची को देखा था, प्यार के नज़र से, छोटी बच्ची अपनी बेटी की तरह उसको लव किया था रहमान ने जेल जाने से पहले, आज भी वही नज़रिया, वही पॉइंट ऑफ व्यू, वही देखने का तरीका मिनी के लिए जिंदा है रहमान के दिल में. इसलिए वो कहता है लिटिल गर्ल. इट वॉज बिलीव्ड दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम. ये रहमान की सोच थी कि मिनी अभी भी एक छोटी सी बच्ची है. इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज he had brought for her a few almonds, raisins and grapes. उसके मेमोरी में, उसके यादों में उसने रहमान ने कुछ almonds, कुछ raisins and कुछ grapes लाए थे. He had wrapped them up carefully in a piece of paper. उसने एक piece of paper में उसको carefully लपेट दिया था, wrap कर दिया था. There is a ceremony in the house, I said again. घर में सेरेमनी चल रही है, घर में उत्सव चल रहा है. मैंने फिर कहा, You won't be able to see anyone today. आज आप किसी से नहीं मिल सकते हो रहमान, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है. मैंने कहा. At this, the man's face fell. इस पे रहमान का चेहरा नीचे झुक गया. And he went out. वो
बाहर जाने लगा। I felt a little sorry. मुझे थोड़ी सी दुख महसूस हुई कि रहमान बगैर मिनी से मिले हुए he is going out, वो बाहर जा रहा है। I was going to call him back, मैं उसे वापस बुलाने के वाला था, but he was returning on his own accord. Accord मतलब सहमति, अपनी सहमति से खुद ही वो वापस दोबारा मेरे पास आता है। He came close up to me, वो मेरे पास नजदीक आता है, and said और कहा, Sir, I brought these few things for the little one. मैंने ये कुछ चीजें प्यारी सी बच्ची मिनी के लिए लाया था। Will you give them to her? क्या ये सारी चीजें आप उसे दे देंगे प्लीज? I took them and was going to pay him. मैंने रहमान से वो सारे सामान ले ली जो मिनी को देने थे और मैं उसे कुछ पैसे पे करने वाला था। But he caught my hand, लेकिन उसने मेरे हाथ पकड़ लिए and said और कहा, Kind sir, don't offer me any money, please sir. ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मुझे पैसे मत दीजिए। I do have a daughter like her in my home. मेरे घर में भी मिनी की तरह एक मेरी बेटी है। मैं मिनी को अपना बेटी मानता हूँ। मैं उसके साथ कोई बिजनेस करने के लिए यहाँ पे नहीं आता। I think of her and bring fruits for your child, not to make any profit. मैं ये फ्रूट उसे गिफ्ट करने के लिए आता हूँ, जिसे गिफ्ट करके मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं उससे कोई प्रॉफिट नहीं चाहता हूँ, मैं पैसा नहीं बनाना चाहता हूँ। This shows the bond of love of रहमान for मिनी। वह मिनी की दुनिया में सामान बेचने आता है, पैसे कमाने आता है, बट वो मिनी के फादर से पैसे नहीं लेता है। एक बिजनेसमैन, एक पेडलर तो पैसे ही कमाता है, चाहे वो कहीं से भी आए, बट मिनी के लिए उसका आलमंड देना, रेजिन देना, नट्स देना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं था, ये बॉन्ड ऑफ लव था। Saying this, he took out from his pocket a small piece of paper. ये बोलते हुए उसने अपने पॉकेट से एक small piece of paper निकाला। Sorry. With great care, he smoothed it out on the table. बहुत ही केयर के साथ उस पेपर को उसने वहाँ पे टेबल पे उसने बिछा दिया। It bore the impression of a little hand. उस पेपर पे एक पाम, एक हथेली का इंप्रेशन था। The impression of an ink-smeared hand laid flat on the paper. उस पेपर पे रहमान के हथेली के इंक भरे निशान थे। इंक भरे हथेली के निशान थे उस पेपर पे, जो वो चाहता था कि ये एक याद के तौर पे मिनी को दे दिया जाए उसके पापा के द्वारा। Tears came to my eyes. मेरी आंखों से आंसू निकल गया। I sent for Minnie immediately. मैंने मिनी को तुरंत बुलाया। Many objections were raised. घर में बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया, मना किया कि मिनी आज किसी से नहीं मिलेगी। But I would not listen. लेकिन मैं सुनता नहीं था। Minnie came and stood bashfully before me. मिनी आई और मेरे सामने शर्माती हुई खड़ी हो गई। She was clad in the red silk of a wedding day. वह रेड सिल्क में, रेड कलर की सिल्क साड़ी उसने पहनी हुई थी अपने वेडिंग डे पे। The काबली वाला looked deeply astonished. काबली वाला बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है उसे देख करके। At last he smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law's house?" Little one, Minnie, क्या तुम आज अपने father-in-law के घर जा रही हो? But Minnie now understood the meaning of the word father-in-law. अब मिनी चूंकि बड़ी हो गई है तो अब उसे father-in-law का मतलब समझ में आ गया है। She flushed up at the question. उस क्वेश्चन पर फ्लस्ट अप हो जाती है, यानी कि शर्मा जाती है। वैसे भी जब किसी लड़की की शादी होती है तो फादर इन लॉ, ससुराल वगैरह बातें जो होती है उसे शर्म लाने को मजबूर कर देती है। तो मिनी भी ये फादर इन लॉ की बात सुन करके शर्मा जाती है। एंड kept standing before him with her face turned down. और उसके सामने फेस को डाउन करते हुए पीछे की तरफ मुड़ा करके खड़े हो जाती है और शर्माने लगती है। After she had gone, और चली गई, रहमान heaved a deep sigh. रहमान एक गहरी सांस लेता है। The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown during all these years. अचानक से उसे याद आता है कि उसकी भी बेटी काबुल में, अफगानिस्तान में बड़ी हो गई होगी। So he would have to make friends with her anew. तो जिस तरीके से काबली वाले ने यहाँ मिनी के साथ फ्रेंडशिप की बचपन से,
उसके भी कई बड़े बड़े दोस्त बन गए होंगे, या काबली वाले को एक नई तरीके से दोस्त बनना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, तो उसे अब जाना पड़ेगा। एंड besides what might not have happened to her in these 8 years, और ये पिछले 8 साल जो मैंने जेल में गुजारे हैं, पिछले 8 साल में पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ होगा। I took out a bank note, मैंने यानी कि मिनी के फादर ने एक बैंक नोट निकाला, एक नोट निकाला अपने जेब से, एंड gave it to him, और उसे दे दिया और कहा go back to your own daughter, अपने बेटी के घर जाओ रहमान, in your own country, अपने कंट्री में अपनी बेटी के पास जाओ। I said may the happiness of your meeting bring a good fortune to my child, मेरी बेटी से मिलना, तुम्हारा मेरी बेटी से मिलना भगवान करे कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। यानी कि मैं ऐसी दुआ करता हूँ, मिनी के फादर ने कहा कि मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि आज जो तुम्हारा मुलाकात मेरी बेटी से हुआ है, यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ये नोट पकड़ो, कुछ पैसे लो और अपने बेटी के पास अपने कंट्री, अपने राज्य में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने घर चले जाओ। The marriage pipe sounded, रहमान चला जाता है, शादी के शहनाई वगैरह बजने लगती है। To me, their music sounded all the sweeter to think that in a distant land, a long lost father would meet again his only child। और मिनी के फादर एक सेटिस्फैक्शन के साथ इस स्टोरी को फिनिश करते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात की एक्सट्रीमली खुशी है कि आज एक बाप जो कई दिनों से अपनी बेटी से सेपरेटेड है, जुदा है, अलग है, आज कई दिनों के बाद वो बाप अपनी बेटी से अपने शहर में, अपने घर में मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी इस स्टोरी की एंड होती है। हमने देखा इस स्टोरी में बॉन्ड ऑफ लव का मतलब क्या हुआ। बॉन्ड ऑफ लव का मतलब एक स्ट्रेंज इंसान जिसका नाम रहमान होता है, वो किसी दूसरे कंट्री से मिनी की दुनिया में आता है और उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है। वो बॉन्ड लव का होता है। और क्या क्या होता है मिनी के साथ और क्या क्या होता है काबली वाले के साथ, कैसा काबली वाला अपनी ज़िंदगी गुजारता है मिनी के साथ और किस तरीके से उसकी लाइफ बदलती है, वो कैसे अपने घर अपनी बेटी के पास जाती है, ये हमने इस पूरे स्टोरी में सुना, पढ़ा। सो बेसिकली इस स्टोरी को पढ़ने का मोटो ये है, समरी ये है। मैं आपको एक लाइन में मोरल ये दूं कि वी मस्ट बी फेथफुल, वी मस्ट बी लवेबल इवन टू द स्ट्रेंजर्स। जो हमारे अजनबी होते हैं उनके साथ भी हमें लवेबल होना चाहिए, उनके साथ भी हमें प्यार से बिहेव करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटी को, लव को स्प्रेड कर सकें सोसाइटी में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।